subject, chapter number 19, The Ugly Duckling. Let us read the lesson first, students. Mother duck was really proud of her 6 new ducklings. They were soft, fluffy and yellow, such fine little ducklings. But the 7th one was very different. It was bigger and its feathers were grey and shaggy. It looked so ugly. All the same, but Mother duck thought, it's my baby duckling. She loved it dearly. But the other 6 brothers and sisters didn't like the ugly duckling. When it paddled towards them, they turned their backs and ran away. Now I am going to explain you these 2 paragraphs, students. See these pictures. These are the ducklings. One is different from them. The rest of the ducklings were in yellow color and fluffy, covered with soft and light fur. Fluffy means covered with soft and light fur, students. And the 7th one was untidy, completely untidy. Students, see that this duckling was completely untidy, so they hated it. They didn't like it, and they did not want to play with it. Okay, students. When it paddled towards them, they turned their backs and ran away. Paddle means to walk with short step, means moving from side to side. Moving from side to side. See the students in the picture. He is moving from side to side, but they turn their backs towards it. Why? Because they did not like this duckling. The little duckling would go for a swim every day to a lake nearby. The ugly duckling wanted to join the others, but they didn't want him. They always swam away from him. He was left all alone. Why they left him all alone? Because they did not like it, so they left him all alone. वो उसे अकेला क्यों छोड़ देते थे? क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करते थे. उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि वो उनके साथ खेले, क्योंकि वो गंदा दिखता था, बदसूरत दिखता था, अनटाइडी दिखता था. उसके बाल, उसके जो पर थे वो कैसे थे? शैगी थे. शैगी मतलब बिखरे हुए थे. और ये उनकी तरफ पैडल टुवर्ड्स थे, मतलब वो उनकी तरफ जाने की कोशिश करता था, लेकिन वो उससे दूर भाग जाते थे, इसलिए वो उनके आसपास ही खेला करता था. तो बच्चों, बहुत इजी है लेसन. नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या होता है. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, स्टूडेंट्स. द अगली डकलिंग swam better than the other ducklings, which did not please them at all. They teased him about his ugliness. His only friend was his mother. Other ducks told his mother, all your ducklings are smart, but this big fellow looks so different. Why is he so ugly? His mother only said, he is mine and I love him. 2. देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बताया गया है कि द अगली डकलिंग स्वैम बेटर. अभी ये जो अगली डकलिंग था वो इनसे भी कई ज्यादा अच्छी तरीके से स्विमिंग करता था, इनसे बढ़िया स्विमिंग करता था. और बाकी के जो थे वो उसे पसंद नहीं करते थे, वो उसे हमेशा चिढ़ाते थे. दे टीज हिम अबाउट हिज अगलीनेस. अगलीनेस मीन्स गंदापन, अनटाइडीनेस. और टीज मतलब चिढ़ाना. पासिंग कमेंट, बैड कमेंट उसे कहते हैं. टीज मतलब चिढ़ाने को. कमेंट करते हैं, गंदे कमेंट्स करते हैं, तो ये उस पे हंसते थे, उसे टीज करते थे उसके अगलीनेस पे. उसकी सिर्फ एक ही फ्रेंड थी. कौन थी? वो उसकी माँ. His only friend was his mother. Other ducks told his mother. Other ducks मतलब दूसरे ducks. उसने पूछते थे कि all your ducklings are smart, but this big fellow looks so different. तेरे सब बच्चे अच्छे स्मार्ट है, लेकिन ये एक फेलो, ये जो है बच्चा, ये क्यों अलग है भाई? ये क्यों इतना गंदा दिखता है? ये why is he so ugly? क्यों इतना गंदा दिखता है? लेकिन उसकी माँ कहती थी कि ही इज माइन, वो तो सिर्फ मेरा है,
और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। At last, feeling very lonely and sad, the ugly little duckling decided to leave the lake. He made his way to the river's edge and swam away with the river. एक दिन क्या हुआ कि वो बहुत दुखी हो गया। At last, feeling very lonely and sad, अकेला हो गया और दुखी हो गया। The ugly little duckling decided to leave the lake, और उसने सोच लिया कि अब मैं इस लेक को छोड़ के, लेक मीन्स तालाब, इसको छोड़ के निकल जाता हूँ, अलग कहीं और चला जाता हूँ। He made his way to the river's edge. River's edge मतलब नदी का किनारा, नदी का किनारा, समझे बच्चों? Swam away with the river. जिस तरफ नदी जा रही है उस तरफ उसने स्विमिंग शुरू कर दी। Wherever the poor duckling tried to seek shelter, he found that he was always ridiculed by other smaller birds, animals, even human beings poke fun at him. He became lonelier and more miserable. Students, यहाँ पर मैं तुम्हें बताती हूँ, ridicule मतलब to laugh at, उसके ऊपर हंस रहे थे। अनकाइंड कमेंट जिसे कैसे है कि जो हमें बर्दाश्त नहीं होते, इस तरह के कमेंट करना, उसे रिडिकुल कहते हैं इंग्लिश में। लोनलियर मतलब बहुत अकेला हो गया। मिजरेबल मतलब दुखी, सैड, बहुत बुरी तरह से दुखी था। Whenever the poor duckling tried to seek shelter, जब भी वो शेल्टर मतलब सहारा ढूंढने की कोशिश करता, कहीं रुकने की कोशिश करता, he found that he was always ridiculed by others. उसका दूसरे लोग मजाक उड़ाते थे, कोई भी हो, चाहे वो बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, हर कोई उसे पोक करता था, उसकी मजाक उड़ाता था, उसकी मराठी में कहते हैं कि चेष्टा करता था, उसे चिढ़ाते थे। He became lonelier and more miserable. इस तरह से वो बिल्कुल अकेला हो गया था और दुखी हो गया था। By and by, he grew bigger and stronger, but whenever he looked at his own reflection, he thought, I look so ugly. He was afraid to look at his own reflection. He hid himself if he saw anyone coming. देखो, ऐसा करते करते वो बड़ा हो रहा था, स्ट्रांग हो रहा था, लेकिन वो खुद का रिफ्लेक्शन, जैसे कि हम पानी में देखते हैं अपने प्रतिबिंब कहते हैं रिफ्लेक्शन को। वी कैन सी आवर ओन इमेज। रिफ्लेक्शन, हम अपनी इमेज देख सकते हैं, जैसे कि हम शीशे में देखते हैं, पानी में देखते हैं। उसका रिफ्लेक्शन देखने को वो डरता था, वो सोचता था कि अरे मैं तो बहुत अगली हूँ, गंदा हूँ। He was afraid to look at his own reflection. He hid himself if he saw anyone coming. और खुद को छुपा लेता था अगर वो देखता था कि कोई उसकी ओर आ रहा है। One day, when he was hiding among the reeds, he saw a flock of graceful white swans swim past. They were the most beautiful birds he had ever seen. How wonderful to be like them, he said to himself. अब देखो, अभी रीड्स का मतलब क्या है? टॉल ग्रास कहते हैं। रीड्स का मतलब क्या है? टॉल ग्रास को रीड्स कहते हैं कि जो नदी के किनारे उगते हैं। एक दिन वो खुद को, वो ग्रास मतलब झाड़ों के, देखो आप हमेशा जहाँ पे बारिश का पानी रुकता है, लंबी लंबी घास उग जाती है, इस तरह से बड़ी बड़ी घास, तो उस घास में वो छुप रहा था। उसने देखा फ्लॉक मतलब अ ग्रुप ऑफ व्हाइट स्वैंस। फ्लॉक मतलब ग्रुप ऑफ व्हाइट स्वैंस। वो वहां पे स्विमिंग करता हुआ जा रहा था। They were the most beautiful birds he had ever seen. इनकी तरह उसने कभी ऐसे खूबसूरत बर्ड्स नहीं देखे थे, क्योंकि वो खुद को डकलिंग समझता था। How wonderful to be like them, he said to himself. और कितना अच्छा होगा, कितना खूबसूरत है वो लोग। वो खुद से बातें कर रहा था, खुद को उनकी जगह महसूस कर रहा था कि मैं अगर ऐसा होता तो कैसा होता। Then came winter. He with cold winds and snow. Without any shelter, the poor duckling was frozen in the snow. And a kind man saw him. He broke the snow and saved the duckling. एक दिन ठंडे की कड़ाके की ठंडी में वो बर्फ जम गई थी उस पर, और वो उसमें बर्फ बनना शुरू हो गया था उसमें। Without any shelter, the poor duckling was frozen in the snow. Frozen मतलब वो बर्फ से
जैसे कि हम कुल्फी बनने के लिए रखते हैं तो वो कड़क हो जाती है, दूध की कुल्फी बनती है, पानी का बर्फ बनता है, इसी तरह वो फ्रीज हो रहा था कड़ाके के ठंड में। अ काइंड मैन सॉ हिम एंड ब्रोक द स्नो एंड सेव्ड द डकलिंग। और उसने देखा उसके इर्द गिर्द से घिरा हुआ जितना भी बर्फ था वो सब झटक दिया और उसकी जान बचाई। Soon it was spring. The duckling had now again a lot of strength again. He found his way to the river's edge and swam further away. और उसने देखा अपने अपना रास्ता देखा। कुछ दिनों बाद वो स्प्रिंग सीजन आया, विंटर के बाद स्प्रिंग सीजन आता है। स्प्रिंग सीजन में वो बाहर निकला और वो उसी तरह से रिवर के नदी के किनारे फिर वो उसने तैरना शुरू किया। One fine morning when he was flapped his wings against his sides, he rose high into the air. He flew on and on till he found himself in a beautiful, fragrant garden. From a thicket close by came 3 beautiful white swans, rustling their feathers and gliding lightly over the smooth water. Students, I am going to explain this paragraph. One fine morning when he flapped his wings against the sides, he rose high into the air. मतलब वो एक दिन क्या हुआ कि वो एकदम से बड़ा हुआ और उड़ने लगा, उसने ऊंची छलांग लगाई हवा के अंदर। He flew on and on, क्योंकि पहली बार उड़ रहा था इसलिए वो ऊंचा ऊंचा उड़ रहा था। Till he found himself in a beautiful fragrant garden from a thicket close by. जब तक कि वो छोटा था कान में छुपा करता था, वो जो टॉल ग्रास थी उसमें छुपा करता था, और उसी थिकेट के बाजू में उसने क्या देखा कि एक फ्रेग्रेंट खुशबूदार बगीचा है, गार्डन। केम 3, कौन आया देखो वहां पर। केम 3 ब्यूटीफुल व्हाइट स्वैन्स रसलिंग देयर फेदर्स। रसलिंग मतलब क्या है कि मेकिंग सॉफ्ट साउंड, मतलब जो लाइट और सॉफ्ट साउंड करते हैं, जो हलचल से सॉफ्ट साउंड क्रिएट होता है उसे रसलिंग बोलते हैं। रसलिंग देयर फेदर्स एंड ग्लीडिंग लाइटली। ग्लीडिंग का मतलब है मूविंग स्मूथली और क्वाइटली, वो हल्का सा आवाज करते हुए धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। किधर, वो पानी में। स्मूथ वाटर मतलब शांत पानी, जो शांत होता है उसके अंदर धीरे धीरे हल्के से आगे बढ़ रहे होते। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पैराग्राफ इज स्टूडेंट्स, द डकलिंग रिमेम्बर्ड द लवली बर्ड्स। ही वॉज अफ्रेड टू मीट देम, but he felt a strange longing to be with them. He made up his mind to approach them, no matter how badly they treated him later on. He swam towards the beautiful birds and bowed his head down to the surface of water. And what did he see in the clear stream below? His own image, no longer a dark, grey, ugly bird, but a graceful and beautiful swan. The other swans swam round the newcomer and welcomed him. अब देखो क्या होता है बच्चों। The duckling remembered the lovely birds, मतलब उसने जो 3 swans देखा था, 3 white swans, तो उसे याद आया कि अरे इन्हें तो मैंने पहले देखा है लेकिन मैं इनके करीब नहीं गया था अपनी बदसूरती की वजह से। He was afraid to meet them, but he felt a strange and longing to be with them. और उसे डर भी लग रहा था उससे मिलने के लिए, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बंधाई, made up his mind, उसने उसकी हिम्मत बंधाई और उन्होंने अप्रोच मतलब उनके तरफ उसने बढ़ना शुरू किया। अप्रोच का मतलब है टू गो नियर समथिंग, नो मैटर हाउ बैडली दे ट्रीट हिम लेटर ऑन। और जाने दो जो भी होगा देखा जाएगा, कैसा वो मुझे अगर बैडली भी ट्रीट करते हैं, मुझसे बदसलूकी भी करते हैं, मुझे मेरा अपमान भी करता है, तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। लेकिन उसने मन में इरादा कर लिया, ही मेड अप हिज माइंड। ही स्वैम टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल बर्ड्स एंड बोर्ड हिज हेड डाउन टू द सरफेस ऑफ वाटर। और वो उनके तरफ बढ़ना शुरू हुआ, और जैसे बढ़ा उसने अपने जो भी ये थी नेक थी सर था वो पानी की ओर उसने झुकाया, पानी के सरफेस पे झुकाया उसने, ऊपरी सतह पे। एंड व्हाट डिड ही सी,
जो वरच्या पृष्ठभागावर मराठी में उसे कहते हैं. What did he see in the clear stream below? जैसे उसने अपना सर पानी की ओर झुकाया, उसने क्लियर स्ट्रीम मतलब झरना जिसे कहते हैं पॉन्ड भी कहते हैं स्ट्रीम, उसके अंदर उसने क्या देखा, क्या उसके खुद की उसने रिफ्लेक्शन देखा, उसकी इमेज देखी. क्या देखा उसने, क्या नो लॉन्गर अ डार्क ग्रे अगली बर्ड. उसने वो नहीं देखा कि जो सोचता था, वो हमेशा खुद को अगली डकलिंग समझता था, ग्रे कलर का, डार्क कलर का, शैगी फर वाला समझता था. और उसने क्या देखा खुद को, बट अ ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल स्वैन. उसने खूबसूरत और प्यारा सा स्वैन देखा उसने, जबकि वो डकलिंग था ही नहीं, डक था ही नहीं, वो डक का बच्चा ही नहीं था, वो स्वैन था. द अदर स्वैम राउंड द न्यू कमर एंड वेलकम हियर. और वो जल्दी से, जो अदर 3 स्वैम्स थे, वो जल्दी से दौड़ते हुए उसके पास आए और उसको वेलकम करे. द बर्ड दैट हैड लिव्ड अ मिजरेबल लाइफ एज एन अगली डकलिंग वाज अ स्वैन आफ्टर ऑल. कि जो बर्ड खुद को डक समझता था और जिसने बचपना अगली डकलिंग के रूप में गुजारा, वो आगे चल के खूबसूरत स्वैन बना. ही कर्व्ड his slender neck and cried joyfully from the depth of his heart. Depth of his heart. This is the phrase, student. Depth of his heart मनाच्या अंतःकरणापासून, अगदी मनापासून, एकदम दिल से उसने खुशी से वो रोने लगा. खुशी से क्या हुआ, दिल से वो रोने लगा. I never dream of such happiness as this. और वो कहने लगा कि मैंने कभी इस तरह का ख्वाब नहीं देखा था. While I was an ugly duckling. जब मैं अगली डकलिंग था कि मैं इस तरह से सुंदर स्वैन बन जाऊंगा, हंस बन जाऊंगा, कि ये ख्वाब मैंने कभी नहीं देखा था. तो बच्चों, ये लेसन पसंद आया ना स्टूडेंट्स? आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन. लेसन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज नॉट द लेसन, दिस इज द स्टोरी. स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड. कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड आंसर्स. ओके, बाय बाय.